Namaste from our side. Nitin ji, the former president of Bharatiya Janata Party and the chairman of Vision Committee here. And I leave this floor open for all of you. You can shoot your questions one by one. I'll be moderating from here and Yamir will be doing it from their side. I think you have to speak little slowly for us to hear what you say, and then if you want us to explain more further, you can let us know. Is that fine? That's perfect. Yeah. First of all, let me thank Nitinji. Thank you very much. It's such a great pleasure to have you with us. It's phenomenal. So thank you very much. I know you have been traveling, and for you to come off the plane and just sit with us and talk is amazing. So we are really excited to talk to you. Thank you very much. Thank you, Vinit, for your help as well. And we have a lot of people here who are very excited to talk to you. And I will go around the table and kind of introduce everyone as they ask their question. But first, let me bring in our president of Overseas Friends of BJP, Shri Chandrakant Patel. He's in Tampa, Florida. And he was the one who really helped us possible for us to get in touch with you. So Chandrakant ji, the floor is yours. नितिन जी सादर नमस्कार। अपने पहली बार अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के एक बड़े लीडर्स का गूगल हैंग आउट ओवरसीज बीजेपी जा रहा है, उसके लिए हम आपका बहुत आभारी हैं। बीजेपी के लिए मार्गदर्शन रहा है। लास्ट टाइम में आपने विनय सर को यहाँ पर कार्यकर्ताओं शिक्षण के लिए भी आपने भेजा, और यहाँ पर जो अभी मिशन 2014 पर जो हमारी टीम यहाँ पर डिफरेंस एरिया में काम कर रही है, सोशल मीडिया में हम लोग काम कर रहे हैं और यूथ लोगों को हम मोबिलाइज कर रहे हैं। जगह जगह अनेक सिटीज पर हम यूनिटी फॉर Chandrakant ji, can you come near to the mic? Chandrakant ji, this is Vinit. Can you come near the mic, please? You are not audible. You will have to come near to your mic. Yeah, that's better. जी, तो नितिन जी यहाँ पर जगह जगह काफी कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पर यूथ लोग भी काफी हमारे फोरम पर जुड़ रहे हैं, और इस मिशन 2014 के लिए जितना भी हम सब लोगों से अमेरिका में रहने वाले 40 लाख भारतीयों को इस तरह से आने वाले इस चुनाव पर हम ज्यादा से ज्यादा उनका सपोर्ट लें, और इसके लिए पूरी टीम हमारे यहाँ। मेरा पहला प्रश्न शुरू करना है यमीर जी, पूछूं? हाँ जी, प्लीज वेट करें। हाँ जी, नहीं आप शुरू करें। हाँ, तो गडकरी जी, अभी जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि भाजपा और एनसीपी में कुछ गठबंधन की संभावना है, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नितिन जी, दिनेश जी, आप चाहे तो अपना माइक फिर से म्यूट कर सकते हैं, शायद उनको सुनाई नहीं दे रहा हो, तो मैं आपको I think there is a static on the side of your side. Okay, yes, so yes. Is over. Yamir asks your participants to put it on mute. Yes. Somebody is putting it on static. Yes. I think Dinesh ji का mic में थोड़ा static है. He is already on mute. हमें Let me. waves मिल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या करें, उनको फिर mute बोलने बोलिए, and then we'll start the answer. Okay, definitely. He's on mute right now, and let me repeat the question once again. उनका question था, is the question? What the question? Can he start his answer? Yes, please. अभी तक एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की ऑफिशियल बातचीत भी नहीं हुई, और इस प्रकार का कोई अभी तक निर्णय भी नहीं हुआ है। ये कुछ मीडिया के लोगों ने इसको उछाल दिया है। वैसे शरद पवार और एनसीपी के लोग कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराज है, और इसलिए उन्होंने उस प्रकार की न्यूज आई है, और अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल बातचीत होकर कोई निर्णय पर नहीं आया। I would like to invite Manik Tyagi to go ahead and ask his next question. Manik, make sure your mic is not on mute when you ask. Right now it is. Thank you for doing that. He's an engineer in New York and OFBJP social media research team convener. Very active guy. He has a lot of blog and a lot of following. One of our very important and core members. Manik, please go ahead with your question. प्रणाम गडकरी जी। नमस्कार। क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर अमेरिका में बहुत ज्यादा बीजेपी के लिए सपोर्ट है, अमेजिंग सपोर्ट है, और मोदी जी के लिए तो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हम एक चीज ढूंढ रहे हैं कि इंडिया के जो ग्राउंड पे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हम उनसे कुछ तरह का कांटेक्ट बना पाए कि हम उनको जो उनको चाहिए और हम हेल्प कर सकते हैं, हम उनको डायरेक्ट कर दें।
तो ऐसा कोई व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, पहली बात तो इसलिए कि अब देश में भी सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो एक ही बात सुझाऊंगा, अब अमेरिका में से आपके मित्र इंडिया में जो है और आपके जो रिलेटिव्स है, दोस्त है, इनको वहां से आप सपोर्ट करने के लिए कहिए। अगर आपके कई आपके पहचान के, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, तो उनमें से कुछ ऐसे कि जो बीजेपी के विरोध में है, मोदी जी के विरोध में है, तो उनको कन्विंस करके बीजेपी के साथ जोड़ने का काम अगर आप वहां से करोगे तो एक बहुत अच्छा आपके तरफ से सहयोग हो सकता है। वो तो गडकरी मेजर के साथ कर चुके हैं। तो बहुत, बाकी आप अभी इस समय हमने एक नोट और एक वोट ये अभियान चल रहा है, आप भी इसमें भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में जरूर सहयोग करिए। और अभी देश का माहौल भी बहुत अच्छा है, लोग परिवर्तन चाहते हैं और देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति बहुत ही हमारे लिए चिंता की है। और हम लोग जो है जिस विचार से करते कि हमारे मन में यही भावना है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, एमपी कौन होगा, मिनिस्टर कौन होगा, कौन सत्ता में जाएगा, इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि हमारा देश कैसे बचेगा। और स्वाभाविक रूप से हम लोग सोच रहे हैं कि इस परिस्थिति में प्रदेश को बाहर कैसे निकाला जाए, और यही हमारी सबसे बड़ी व्यथा है और हम सब लोग इस पर काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि चुनाव होगा, जीत कर आएंगे और हम ऐसी नीतियां अपनाएंगे इससे निश्चित रूप से हिंदुस्तान को आज की स्थिति से बाहर निकालकर एक अच्छी स्थिति में ले जाएंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, that was awesome. Amen to that. Adit, I guess Adit Kapadia from Texas. Nitinji, he's also our OF-BJP convener for print media research. Very talented guy. He writes beautifully and writes beautifully for very well-researched articles. I would put the mic to him. Adit, go ahead with your question. थैंक्स यामिर। नमस्कार नितिन जी फ्रॉम ह्यूस्टन। एक्चुअली हम लोग विनीत जी से भी काफ़ी टच में रह चुके हैं, मैं और प्रमोद कुमार बुरवल्ली जी, ईमेल से हमारी टीम के लिए। हमारी टीम एक आर्टिकल्स लिखती है जो मीडिया में बेसिकली जो गलत बात बीजेपी के लिए बताते हैं उसको हम बस्ट करते हैं, वो मिथ्स को। सो हम आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसी कोई लिस्ट है या ऐसी कोई स्विंग सीट्स आप बता सकते हैं जहां बीजेपी ने काफी अच्छा किया था पिछले 10 सालों में, और हम अभी इस पे कंसंट्रेट करें ये स्विंग सीट्स पे, तो हम आर्टिकल्स या वो सब उस सीट को ध्यान में रख के लिखे, सो वहां पे अपना ज्यादा फायदा हो सके। ऐसी कोई लिस्ट या ऐसा कोई स्विंग स्टेट्स या स्विंग सीट्स का कोई है? देखिए, अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें कम से कम 275 से 300 सीटें ऐसी है जो कभी ना कभी हम जीते हैं। और आपको पता है कि हमारी डेमोक्रेसी ऐसी है कि कोई 50% से ऊपर वोट लेकर हम नहीं जीतते। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट जैसे होता है 3-4 कैंडिडेट में, उसके कारण भी हमको जीत मिलती है। और मैं आपको बताऊंगा कि इस बार मोटे तौर पर जो राज्य हमारे लिए अच्छे हैं उसमें से कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये हमारे लिए बहुत अच्छे राज्य है। झारखंड, और इस बार महाराष्ट्र में भी हम अच्छी तरह से जीतेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों में हम लोग अच्छी जीत हासिल करेंगे। हमारे लिए जो मुश्किल के प्रांत है उसमें से है तमिलनाडु, केरल, जहाँ हम लोग अभी भी जैसा जय वैसे रूट्स हमारे अंदर नहीं जा सके। आंध्र प्रदेश में भी हमारे लिए अड़चन है, बंगाल में है। और इस बार मेरा विश्वास है कि कर्नाटक में हम जितनी सीट जीते थे उतने कायम रखेंगे। आसाम में हम लोग अच्छी तरह से जीत हासिल कर पाएंगे। बंगाल हमारे लिए कठिन है, और अरुणाचल के दोनों सीटों में भी हम अच्छे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहां हम जीत सकते हैं वहां पूरी जीत की कोशिश करें, और जहां हम जीत नहीं सकते हैं वहां हम लोग हमारी ताकत बढ़ाने की पूरी कोशिश चुनाव में करेंगे। ऐसी रचना हमने तैयार की है।